प्रार्थना करीश कि આજનું સેશન આપણે સંભાળવાનું છે અને આજનો વિષય ખૂબ સરસ છે. માતાઓ બહેનો પોતાની ડાયરી લઈને ચોક્કસ બેસજો, જેમાં બેન આપણને સમજાવશે કે જ્યારે માતા ગર્ભવતી હોય છે ત્યારે જે બાળક શબ્દો, અવાજ જે કંઈ પણ સાંભળે છે, તો માતા દ્વારા સાંભળવામાં આવતા અલગ અલગ અવાજોનો આપણા ગર્ભસ્થ શિશુ પર શું પ્રભાવ પડે છે, બરાબર છે. આપણે જાણીએ છીએ કે જ્યારે આપણને દિનચર્યા આપવામાં આવે છે ત્યારે કહેવામાં આવે છે ઓછામાં ઓછો 4 કલાક એકદમ સોફ્ટ મ્યુઝિક, એટલે કે વાંસળી સાંભળો, જલતરંગ સાંભળો, દિલરુબા સાંભળો, જુદા જુદા સોફ્ટ વાજિંત્રોને સાંભળો, પહાડો ઉપર વાગતા સુંદર શાંત અવાજમાં મીઠા મીઠા અવાજે સંભળાતા સંગીતને સાંભળો. તો આ જે બધા અવાજો છે, બાળકને એના વિકાસ માટે શું શું જરૂરી છે, તો માતાએ શું શું ધ્યાન રાખવાનું છે, ખૂબ જ સારગર્ભિત વિષય છે. નાદ બ્રહ્મ બ્રહ્મ હિ નાદ હૈ, બરાબર છે. આપણે સાંભળેલું છે કે બ્રહ્મ દ્વારા એક નાદ પેદા કરવામાં આવે છે અને નાદ દ્વારા શબ્દોની રચના, સંગીતની રચના, વ્યવહારની ભાષાની રચના, વ્યાકરણની રચના, જુદી જુદી ભાષાઓ આપણે સાંભળી, કામ માટે લાગતી જુદા જુદા વ્યવહારની ભાષા શબ્દો દ્વારા આપણે સાંભળીએ છીએ. તો ગર્ભસ્થ શિશુના જીવનમાં શું અસર કરશે તેના વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપણને બેન આપશે. પણ અર્ચનાબેન, આપ પ્રેઝન્ટ હો? हेलो अर्चना हाँ बेन? हाँ मैं हूँ। हाँ हाँ, आप सुन रहे हो ना? ठीक है. जी। તો મેં હું આજે બેનનો પરિચય આપીશ કે એક ઉચ્ચ કોટીના સાધક માતા પિતા અને મિલિટરી અનુશાસનમાં જેમનું ઘડતર થયું છે, તેમજ ખૂબ સરળ સહજ સાક્ષી ભાવ ઉદ્દાત સાધક તરીકે, મૂક સાધક તરીકે જેઓ ખૂબ કામ કરે છે. માત્ર એમનું લક્ષ્ય શું છે? ગુરુ કાર્ય. ગુરુ કાર્યમાં કાર્ય એવું કરો કે જ્યાં પણ કામ કરીને આવો તો માણસો ગુરુ સત્તાના વિચાર ક્રાંતિ અભિયાન સાથે જોડાય અને નાના 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 સાધના ક્રમો દ્વારા એમને આગળ લાવવું અને જીવનને ઉદ્દાત બનાવવાના એમના સટીક ખૂબ પ્રયત્નો. એમના જ્ઞાન વિશે વાત કરવામાં આવે તો ઘણા જ ગુરુદેવના જે વાંગ્મય લખવામાં આવ્યા છે, બહુ ઘણા વાંગ્મયનું એમણે પઠન કર્યું છે. એ પઠન દ્વારા એમણે વાંચન, મનન, ચિંતનનો સ્વાધ્યાય કર્યો છે અને આ સ્વાધ્યાયનો જે મર્મ છે, જે કાંઈ પણ એનો નિચોડ છે પોતાના ગુરુ કાર્યમાં, એ હંમેશા દરેક વખતે જ્યારે પણ તમે એમની સાથે યજ્ઞમાં જાઓ કે સાથે કોઈ કામ સોંપવામાં આવે તો હંમેશા નીત નવું કંઈક આધ્યાત્મ આપણને જાણવા મળે. એવા જ્ઞાનથી ભરેલા શાંત સ્વભાવના બેનને હું પ્રાર્થના કરીશ. વિશેષમાં જ્યારે ડીએસવીબીમાં સૌથી પ્રથમ કોલેજની આપણે શરૂઆત કરવામાં આવી ત્યારે જ્યારે અહીંયા વડોદરામાંથી આપણે એમનું એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ લેવામાં આવતી ને બેનને આ સટીક કામ સોંપવામાં આવ્યું ને ખૂબ સરસ રીતના એમને આ કામ નિભાવ્યું. સ્કૂલોમાં ભારતીય સંસ્કૃતિ જ્ઞાન પરીક્ષા વિશે પણ એમણે ખૂબ કામ કર્યું છે, નારી જાગરણ વિશે ખૂબ કામ કર્યું છે. જે ગરીબ ઘરના બહેનો અને જેમને કાંઈક અર્થ ઉપાર્જન કરવું છે, કાંઈક કામ કરવું છે, આ બધી માતાઓને શિક્ષણ આપવાનું કેવું, તો કે એમને સીવણ ક્લાસ ચલાવતા, એટલે સીવણ ક્લાસ શીખવાડ્યા, એમને ટેલરિંગ શીખવાડ્યું, એમને જુદી જુદી જાતના પિકલ્સ બનાવવાના, મામલેટ્સ બનાવવાના, સોસીસ બનાવવાના, એટલે ગૃહ ઉદ્યોગો સિઝન પ્રમાણે એવું સુંદર. એટલી બધી બહેનોને નારી જાગરણ દ્વારા પોતાના પગભર કરવા વાળી આવી આપણી ખૂબ સુંદર, આપણે વિદુષી કહી શકીએ એટલી સરસ જ્ઞાનથી ભરેલી અર્ચનાબેનને હું પ્રાર્થના કરીશ કે આજ આપનું વક્તવ્ય આપો અને બધાને લાભાન્વિત કરો. એમનો એક વાત એવી છે કે ગુજરાતી બહુ સરળ રીતે બોલી નથી શકતા, પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ આપ હિન્દીમાં અને ગુજરાતીમાં મિક્સ ભાષામાં આપનું ઉદ્બોધન આપી શકશો. તો આજના વિષયને ન્યાય આપવા માટે હું આપનું સ્વાગત કરું છું. ખૂબ ખૂબ સાધુવાદ બેન, આપ અને આપ આપનું વક્તવ્ય આપશો. અમારી સાથે અમે બહુ જ બધા કામ કર્યા છે, અમે લગ્નો પણ કરાવ્યા છે, જાત જાતના ખૂબ સરસ. અમે બેઉ એકબીજાના સહયોગી બનીને ખૂબ કામ કર્યું છે. તો એવી મારી ખૂબ પ્રિય બહેનને હું પ્રાર્થના કરીશ કે આજ આ વિષય સંગત ખૂબ સરસ માહિતી આપી આપણી ગર્ભવતી માતાઓને લાભાન્વિત કરીએ. તો અર્ચનાબેન.
આપसे નિવેદન. જય ગુરુદેવ. ગુડ લક. જય ગુરુદેવ. ખૂબ ખૂબ આભાર દિવ્યાબેન, તમે એટલું સરસ મારું પરિચય આપ્યું કે મેં વિચાર્યું નતું. બહુ જ ઓછો છે પણ સમયને ધ્યાનમાં રાખી અને નાનું નાનું આપ્યું છે. आपका परिचय सर्वप्रथम तो शब्द हाँ, बहुत कम है. आप शुरू कीजिए प्लीज. सर्वप्रथम मैं धन्यवाद के कुछ शब्द कहना चाहूंगी अपनी एजीएसपी टीम वडोदरा और गुजरात जोन की टीम को कि आपका खूब खूब आभार और अभिनंदन। हमारी सभी बहनें इंक्लूडिंग दिव्या बहन, निशा बहन, भारती बहन, सबका नाम तो मैं नहीं ले सकती, लेकिन सभी बहनें गुरु कार्य को खूब प्रेम और उत्साह से करती हैं और गुरु कार्य को अपना दायित्व मानकर पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाती है। आने वाली पीढ़ी को संस्कार सिंचन का कार्य आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी द्वारा विदेशों तक पहुंच चुका है। हमारी बहुत सी बहनें ऑनलाइन गर्भ संस्कार भी आप लोगों ने कराए हैं और आज की गर्भवती माता और शिशु जो इस माध्यम से, जूम माध्यम से हमारे साथ जुड़ते हैं, वो सभी आजीवन आपके ऋणी रहेंगे और यही संस्कारित शिशु आने वाले 20-25 वर्षों में ऐसे उच्च कोटि के महान व्यक्तित्व बनेंगे कि गुरुदेव की वाणी को, गुरुदेव के भारत को, स्वप्न को साकार करेंगे कि ये आने वाले नवजात शिशु 20-25 वर्षों में सत्य साबित करेंगे। जैसा गुरुदेव ने भविष्यवाणी में कहा है कि भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा, तो ऐसे ही आज जो संस्कारित शिशु हो रहे हैं, हमारे द्वारा संस्कारित किए जा रहे हैं, और भी कई संस्थाएं करती हैं गर्भ संस्कार का कार्यक्रम, तो तभी हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा। और गुरुदेव ने कहा है कि विसर्जन और नव सृजन का कार्यक्रम एक साथ ही चलेगा। तो उसका उदाहरण आज मिल रहा है कि एक तरफ तो यूक्रेन, रशिया वगैरह विसर्जन का कार्य कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और संसार में कितनी भयावह घटनाएं हो रही है और इतने बड़े विनाश और दुर्घटनाओं के बीच में हमारा अवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी एक गिलहरी के समान कार्य कर रहा है। इसका श्रेय हमारी बहनों को दिया जाता है। और क्योंकि हम ये लोग हमें याद करेंगे क्योंकि हमारा काम जो है मानवता में सहयोगी है। और ऐसी समस्त बहनों को और टीम को एक बार फिर मेरा नमन वंदन और आपके प्रयास और मेहनत के लिए खूब खूब आभार और अभिनंदन। तो आइए हम अपना हाँ हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि हमारा जो टॉपिक है उससे पहले हम एक बार गुरु वंदना करेंगे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमो स्थापयामि। ततो બેન અવાજ નથી આવતો તૃપ્તિબેન. हाँ हाँ આવે હવે છે આવે હવે? છે? હા આવે हाँ છે. હવે આવે છે. હા દિવ્યાબેન તમારું માઇક બંધ કરી દેજો, મારે વારે વારે બંધ કરવું પડે છે. तो हम अपना टॉपिक आज का जो है गर्भस्थ शिशु पर बाहरी आवाजों का, अलग अलग ध्वनियों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। गर्भवती का यूं तो प्रत्येक कार्य का असर गर्भस्थ शिशु पर होता ही है। उसके वाणी, विचार, व्यवहार, वर्तन, खान पान, हर चीज का प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज है वातावरण, जो कि हमारे चारों तरफ व्याप्त है। अलग अलग प्रकार की ध्वनियां हमारे वातावरण में होती है। तो इन सब बातों का कैसे प्रेगनेंसी पर प्रभाव पड़ता है, ये ही थोड़ा सा हम आज डिटेल में बात करेंगे
कि ज्यादातर आज के माहौल में हम लोग जुड़े रहते हैं ओटीटी पर, इन इन सब चीजों पर, अपने नेट सर्फिंग पे, या हम संगीत सुनते हैं, मूवीज देखते हैं या सीरियल देखते हैं, घर में टीवी की आवाज होती है। तो ये सब चीजों का प्रभाव पड़ता है गर्भ के ऊपर। लेकिन गर्भिणी को हमेशा अपना ध्यान रखना चाहिए कि उसे बहुत तेज आवाज का संगीत या कोई भी इस प्रकार की तेज आवाजें नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि उससे गर्भस्थ शिशु पर नेगेटिव इफेक्ट आते हैं। यदि आप अच्छा संगीत सुनते हैं, और तो अच्छा संगीत यानी कि मन को आपको खुश करता है ऐसा संगीत, तो ये आवाज आपके शिशु को भी शारीरिक विकास में मदद करती है। यदि आप बहुत देर तक तेज आवाज में रहते हैं तो गर्भस्थ शिशु का विकास पे असर पड़ता है, और गर्भस्थ शिशु बेचैन होता है, बहरापन भी हो सकता है। ज्यादा देर तक तेज आवाजों में रहने से गर्भस्थ शिशु के अंदर बहरापन भी आ सकता है। गर्भिणी को हेडफोन का बिल्कुल उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हेडफोन से डायरेक्ट वाइब्रेशन कान में और ब्लड में मिलते हैं, जो शिशु तक पहुंचते हैं। और शिशु जैसे हम कहते हैं कि 20वें हफ्ते में शिशु का इंटरनल ईयर और एक्सटर्नल ईयर डेवलप होता है। तो इस 20वें हफ्ते के अंदर यदि आप तेज आवाज सुनते हैं और हेडफोन का उपयोग करते हैं, तो शिशु के अंदर बहरापन भी हो सकता है, उसके जो कान बनने की प्रक्रिया है उसमें अवरोध भी आ सकता है। तो ईयरबड वगैरह का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, इससे तेज आवाजों से शिशु चौंक जाता है और फिजिकली डेवलपमेंट में उसको प्रॉब्लम होती है। तो और तेज आवाज सुनने का दूसरा कारण भी ये होता है कि गर्भिणी को भी थोड़े समय के बाद तनाव महसूस होने लगता है। जो अनअवॉइडेबल साउंड्स है, जैसे कि एरोप्लेन जा रहा है या कहीं आसपास फैक्ट्री है या रोड पर रहते हैं, तो तरह तरह की ट्रैफिक की आवाजें होती है, तो कभी कभी उससे बेचैनी हो जाती है, तनाव बढ़ने लगता है, जिससे कि कार्टिसोल नाम का हार्मोन ब्लड में बढ़ जाता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, और ये तनाव को जन्म देता है। तनाव माता को भी होता है, साथ में शिशु को के ऊपर भी तनाव का असर होता है। और खास करके थर्ड ट्राइमेस्टर में, जो तीसरा 7, 8, 9वां महीना है, उस समय तो तेज आवाजें बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। बच्चे के दिमागी विकास के लिए ये आवाज बहुत हानिकारक होती है। इससे बच्चे का मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अब गर्भिणी को क्या सुनना चाहिए, प्रश्न आता है कि उसको कैसा म्यूजिक और कैसी बातें और कैसी चीजें सुननी चाहिए। तो जैसा कि दिव्या बहन ने अभी बोला कि सॉफ्ट लाइट म्यूजिक, हल्का मन को प्रसन्न करने वाला संगीत उनको सुनना चाहिए, जो कि गर्भिणी पर और शिशु पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड में होता है, तो उसे गूंजने वाली आवाजें ज्यादा पसंद आती है, जैसे कि वेद मंत्रों का उच्चारण, ओम का उच्चारण। हम ओम ऐसे धीरे नाभि से श्वास ले भर के जब ओम का उच्चारण करते हैं, तो ये रेजोनेंस क्रिएट करता है। ये रेजोनेंस वाली आवाजें शिशु को बहुत पसंद आती है, क्योंकि उसको तो पानी के अंदर वो आवाज है, एमनियोटिक फ्लूइड में जाकर के क्रॉस करके वो आवाज सुनाई देती है। गर्भिणी को 65 to 70 डेसिबल, इससे ज्यादा आवाज की ध्वनि नहीं सुननी चाहिए। ये और हेडफोन का उपयोग तो बिल्कुल भी दूर कर दें। आप हेडफोन तो बिल्कुल भी ना सुने, वो अत्यंत हानिकारक है, क्योंकि हेडफोन केवल न केवल आवाज देता है, साथ में वो कुछ रेडिएशन और कुछ वाइब्रेशंस वो आपकी बॉडी के अंदर भी इंसर्ट करता है। इसीलिए हमें क्या सुनना चाहिए, शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत, संस्कृत के वेद मंत्र, ये सब क्या करते हैं, आपके और आपके बच्चे की दिव्य क्षमताओं को जागृत करते हैं। संस्कृत भाषा के जो मंत्र हैं, जो स्तुतियां हैं, जो श्लोक है, और इसमें आ जाते हैं, आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, गायत्री चालीसा पढ़ते हैं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ते हैं, अथर्वशीष बोलते हैं,
ये सब संस्कृत में है, जिनकी लिपि संस्कृत में है। अगर ऐसे श्लोक और ऐसे चालीसाओं को आप रोज सुनते हैं और नियमित एक समय पर सुनते हैं, तो ये आपके शिशु पे बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं और इससे उनका आईक्यू लेवल भी बढ़ जाता है। संस्कृत भाषा को कहते हैं देव भाषा कहते हैं, इसीलिए देव भाषा कहते हैं कि संस्कृत सुनने और बोलने से आपके मगज के न्यूरॉन्स में बढ़ोतरी हो जाती है। इस समय तो बच्चे का मगज बन रहा है, तो उसमें न्यूरॉन्स की वृद्धि होती है, जिससे उसका आईक्यू लेवल बढ़ जाता है। और हम इस ऐसे समय में हमारे गुरुदेव ने एक दिया है नाद योग, जिसमें कृष्ण की बांसुरी का वर्णन है। बांसुरी के साथ आप मेडिटेशन कर सकते हैं, या जैसे शिव के डमरू की धुनी है, वो भी बच्चे के लिए बहुत अच्छी है। और ये तो खैर सबको पता है कि अच्छा संगीत, मधुर संगीत, शास्त्रीय संगीत, ऐसी चीजें, या गर्भवती माता स्वयं गुनगुनाती है साथ में, तो उससे भी बच्चे की बहुत सारी विकास में उसके इंद्रियों के विकास में बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। वैसे तो घर के वातावरण में तरह तरह के इमोशंस फेस करने पड़ते हैं। यदि गर्भिणी जॉइंट फैमिली में रहती है और उसके पहले से दूसरी या तीसरी प्रेगनेंसी है, ये पहले से कुछ बच्चे हैं, तो उन बच्चों को भी उसको फेस करना पड़ता है और उनको काम करना पड़ता है। तो घर का वातावरण में साउंड्स में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आते हैं। तो कभी कभी कलह कलेश का वातावरण होता है घर में। उन सब चीजों को अवॉइड करने की पावर गर्भवती माता को है। एक माँ चाहे तो अपने बच्चे को कोई भी बाहरी हार्श वॉइसेस जो है उनसे बचा सकती है। कैसे बचा सकती है? अपना ध्यान स्वयं वहां से डाइवर्ट कर ले और वो कुछ वेद मंत्र गाने लगे या मंत्र सुनने लगे, या वहां उस जगह से अपने आप को वहां से हटा ले, तो भी वो उन चीजों को अवॉइड कर सकती है। ये यहाँ पर गर्भवती माता को स्वयं निर्णय लेना होगा कि बस अब और नहीं, मैं यहाँ नहीं खड़ी रह सकती अब, और ये ज्यादा आवाज, जैसे कभी कभी शादी में जाते हैं तो बहुत लाउड म्यूजिक होता है, या फैक्ट्री के पास रहते हैं तो भी ऐसी आवाज होती है, या उनका वर्क प्लेस ही ऐसा है कि गर्भवती माता को ये आवाजें सुननी पड़ती है। तो वो अपने आप को इनसे बचा के रखे, कम से कम ये गर्भ काल में अवॉइड करे उन चीजों को सुनना, क्योंकि इससे बच्चे का विकास, मगज का विकास और शारीरिक विकास पे फर्क पड़ता है और बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। बच्चे का दिमाग का विकास तो वैसे दिमागी विकास तो तीसरे हफ्ते से शुरू हो जाता है और 5 वर्ष तक लगातार बच्चे का ब्रेन बनता रहता है। तो हम इसमें पॉजिटिव क्या कर सकते हैं? कैसे उन चीजों से बचे और कैसे उसको, अगर कुछ नेगेटिव है उसे अवॉइड नहीं कर पा रहे, तो हम उसके सामने क्या पॉजिटिव करें कि जिससे बच्चे का दिमागी विकास बहुत अच्छा हो सके। तो उसके लिए कुछ रेमेडीज हमारे आयुर्वेद में भी दी हुई है और हमारी दादी नानी सभी जानती है। वडील स्त्रियां घर में जो होती है वो बताती है कि आप 5 बादाम और 2 अखरोट भिगो के सुबह अवश्य खाएं। भिगोने से पानी में रात में भिगो दे 5-6 घंटा और सुबह उनका सेवन करें, साथ में थोड़ी सी काली मिर्च और मिश्री। ये दिमाग के लिए और आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। आप चाहे तो इसे नोट कर ले। वैसे तो ये बहुत कॉमन रेमेडी है, सबको पता होगी कि 5 बादाम, 2 अखरोट, 3-4 दाने काली मिर्च और 3-4 दाने मिश्री के खड़ी साकर, तो वो सब आप चबा के खाएं या पीस के पाउडर करके, जैसे आपको पसंद है। और इससे हमें क्या मिलता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अखरोट और बादाम को भिगोने के बाद उसमें से मिलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि हमारे बच्चे के दिमाग के विकास के लिए बहुत जरूरी है। उसके अलावा और चीजें हैं, जैसे दही, डेयरी प्रोडक्ट्स, दही और अ, 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 पनीर वगैरह, ऐसी चीजें आप खा सकते हैं। 1 गिलास ताजा गर्म गाय का दूध पी सकते हैं। ये सब दिमाग को बहुत सूदिंग इफेक्ट देते हैं। इसके अलावा विटामिन सी वाली चीजें, जैसे चुकंदर है, आंवला,
संतरा, अनार, टमाटर, ये चीजें भी बच्चे के लिए काफी फायदेमंद होती है जब उसका दिमागी विकास हो रहा होता है। इसके अलावा डॉक्टर्स आपको सप्लीमेंट तो देते ही है, आयरन और कैल्शियम। अब ये भी बताते हैं कि कब से खाना चाहिए। ज्यादातर तीसरे महीने से आपको सप्लीमेंट्स लेना शुरू करना चाहिए। अब इनका क्या असर होता है, हर सेशन में बताया जाता है खान पान और संवाद वगैरह के विषय में, लेकिन पर ये इतना जरूरी है बच्चे के विकास के लिए कि जितनी बार रिपीट किया जाए उतना अच्छा। कि आप कैल्शियम लेते हैं तो बच्चे के दांत और हड्डियां और दिल, ये हार्ट बनाने के लिए ये सब चीजें रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज होती है। तो आप ये कैल्शियम अवश्य लें, और जितनी डोज डॉक्टर ने आपको बताई है उस हिसाब से आप अवश्य लें। दूसरी चीज है आयरन की गोली, ये भी सुबह नाश्ते के समय, और अदर विटामिन सप्लीमेंट्स आपको लेने चाहिए। तो ये, इसमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आयरन और कैल्शियम को साथ में नहीं लेना चाहिए। ये एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन में बाधा बन जाते हैं कई बार। तो आपको ये आधा घंटे के गैप करके ही लेना चाहिए। ये आधे घंटे के बाद कैल्शियम और आयरन में गैप करें, उसके हिसाब से ही लें। तो यदि गर्भावस्था में कई बार ऐसा होता है कि आपको गैस बनने लगती है, गर्भिणी को स्टमक दबता है तो गैस की तकलीफ हो जाती है। तो और यह सप्लीमेंट्स लेने से भी कभी कभी सूट नहीं करते तो गैस बनती है। ऐसे समय में क्या करें, तो ऐसे समय की रेमेडीज बताई है कि आप थोड़ा गुनगुना गर्म पानी पिए। अगर आपको गैस बनने से बहुत बेचैनी हो रही है तो उसके निवारण के लिए दो चीजें बताई जाती है। तीसरे महीने से शुरू कर सकते हैं, आप तीसरे महीने से शुरू करें। ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन से महीने से शुरू करें, तो तीसरे महीने से आप सप्लीमेंट्स लेना शुरू करें। और बादाम और अखरोट तो आप पहले दिन से ही खा सकते हैं, और डेली रूटीन में वैसे भी लेना ही चाहिए। प्रत्येक स्त्री को अपने सप्लीमेंट्स पूरे करने के लिए कुछ भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स एक मुट्ठी भर खाने ही चाहिए। तो उसके निवारण के लिए जब गैस बन रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि गैस बनती है तो उसका सबसे अच्छा इलाज है थोड़ा गुनगुना पानी पी के वॉक करें, और खाने में फाइबर युक्त आहार लें। फाइबर युक्त भोजन लेने से पेट में भारीपन नहीं होता है। और अ, हर खाने के बाद कुछ कदम अ, दोपहर को भी आप वॉक कर सकते हैं, थोड़ा चलना अच्छा रहता है, उससे खाने का डाइजेशन अच्छा होता है। और जब गैस बनती है तो इससे प्रश्न आता है कि हमें गैस बन रही है तो बच्चे पे क्या इफेक्ट होगा। तो बच्चे पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बच्चा तो एमनियोटिक फ्लूइड में होता है, उस पे कोई दबाव नहीं आता। बेचैनी तो सिर्फ माँ को होती है, क्योंकि उसके अंदर हॉर्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, वोम का पेट का साइज बढ़ रहा होता है। तो अ, माँ को तकलीफ होती है, बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बच्चा सेफ होता है। और दूसरी चीज आती है पोषक तत्वों का ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे के विकास में ये सभी पोषक तत्व, ये तो हमने कुछ सप्लीमेंट्स की बात करी आयरन कैल्शियम की। उसके अलावा पोषक तत्व जैसे हमने बताया कि आप फाइबर युक्त आहार ले, उसमें गाजर, टमाटर, सलाद सलाद और ताजे फल, मौसमी फल भरपूर खाए। तला हुआ और बासी भोजन बिल्कुल ना करें। कई बार जो कि वो ये पचने में भारी होता है। देखा गया है कि गर्भिणी को बहुत बार खट्टी चीजें खाने का बहुत मन होता है, ये बाहर के पानी पूरी या बाहर का फरसान कुछ भी खाने का। तो ये सिर्फ अपने 2 इंच जीभ की बात होती है। बच्चे को तो और अपने शरीर को इससे बहुत नुकसान होता है। ये तला हुआ भोजन आप लेते हैं, चटपटा भोजन लेते हैं, या बाहर का फूड इंटेक करते हैं जिसमें कि उनकी क्वालिटी का कोई पता नहीं होता, कौन सा तेल वो लोग यूज करते हैं। समोसे, फरसाण आप बाहर के खाते हैं, नमकीन बिस्किट बाहर के खाते हैं, तो उसमें कौन सी चर्बी युक्त पदार्थ यूज हो रहे हैं, वो कैसी चर्बी है, वो हमें नहीं पता चलता। इसलिए 9 महीने थोड़ा संयमित रहे, और कोशिश करें कि अगर खाने की कुछ इच्छा है तो आप घर में ही बनाए या घर में बनवा कर खाएं। तो उससे आपका इच्छा भी पूरी होगी और शिशु के विकास में भी
उसमें उसकी त्वचा पे असर नहीं पड़ेगा। जब आप खट्टी चीजें खाते हैं तो शिशु की त्वचा अच्छी नहीं बनती है। खटाई से शिशु की त्वचा पे फर्क पड़ता है। कई बार देखा गया है कि कैल्शियम आयरन की कमी होती है, तो कुछ माताओं को, ग्रामीण माताएं जो होती है, वो मिट्टी खाती है, चौक खा लेती है। तो ये सब चीजें आजकल तो समझदार माता है, तो उनको ये सब चीजें नहीं खाना चाहिए। और हमें सुबह शाम चलना जरूर चाहिए। तो चलना बहुत जरूरी है, चलना और पानी पीना। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप क्या क्या सहयोग ले सकते हैं? अब जैसे ये सारी चीजें करें, शिशु का ध्यान रखा जा रहा है, तो हमारी बात आती है कि हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या कर सकते हैं, कि कैसे हर गर्भिणी चाहती है कि डिलीवरी नॉर्मल हो। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए योगासन सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं। गर्भावस्था में किए जाने वाले योग, वो कैसे योग होते हैं? आज तो वैसे भी योगा डे है, 21 जून। तो योग की बात करनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में योग का समावेश करना चाहिए। लेकिन गर्भिणी को कैसे आसन करने चाहिए? गर्भिणी के लिए कुछ नियुक्त आसन है। एक तो वॉकिंग, तो तेज चल सकते हैं। दूसरा है मार्जारी आसन, कैट पोज, जिसमें कि घुटनों के बल चलना होता है। और ये बहुत अच्छा होता है एब्डोमेन के लिए, एब्डोमेन मसल्स के लिए। और दूसरा होता है बटरफ्लाई और हाफ बटरफ्लाई, जिससे कि गर्भिणी का पेल्विक एरिया को अच्छा मूवमेंट मिलता है। वो मसल्स टोन अप होते हैं और फ्लैक्सिबल होते हैं वहां पर। इसके अलावा हम बटरफ्लाई एक एक पैर से भी कर सकते हैं। कि आप दोनों पैर से नहीं कर पा रहे या लास्ट समय है, तो आप एक एक पैर से भी कर सकते हैं। तो ये मूवमेंट बना रहेगा, तो पेल्विक मसल्स फ्लेक्सिबल रहेंगे। एक चीज और है जो आप तीसरे महीने के बाद से कर सकते हैं, मलासन। मलासन और चक्की आसन। मलासन और चक्की आसन। मलासन यानी कि आप बच्चे को पॉटी कराते हैं तो आप कैसे उबड़क बैठते हैं, वो उबड़क बैठने का जो आसन है वो मलासन है। उससे भी गर्भिणी को बच्चे को पोजीशन लेने में बहुत फायदा मिलता है। उसके लिए, बच्चे के लिए इजी हो जाता है, गर्भ के लिए। और ये सब मूवमेंट्स आप एक बार में 25 से 50 बार तक, आपकी बॉडी की जैसी कैपेसिटी है, आप कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आता है कि पानी पीना। पानी पीना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना योग करना। हाँ, ये योगा आप 9 मंथ्स पूरे कर सकते हैं। इसमें अगर अगर आप शारीरिक रूप से तंदुरुस्त है, अगर डॉक्टर ने बोला है, प्रिकॉशन है या कुछ बेड रेस्ट है, तो फिर आप डॉक्टर के कहे अनुसार चले। बाकी हल्के फुल्के व्यायाम करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये आसन जो है ये सेफ आसन है। मार्जरी आसन, बटरफ्लाई, मलासन और चक्की आसन, ये आप कभी भी कर सकते हैं। और अगर डॉक्टर ने स्पेशल कंडीशन बताई है तो फिर आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा है पानी पीना। गर्भिणी को एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि वो वाटर इनटेक उसका कितना हो रहा है। कई बार ऐसा होता है मौसम की वजह से या काम में बिजी रहने की वजह से आप पानी पूरा नहीं पीते हैं। लेकिन गर्भिणी को खास पानी पे ध्यान देना चाहिए, अच्छे से पानी पीना चाहिए। और पानी पीने से उसके फायदे क्या होते हैं कि उनका जो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल है वो मेंटेन रहता है। एमनियोटिक फ्लूइड, जिसमें कि बच्चा 9 महीने रहता है, उसका लेवल मेंटेन बनाए रखने के लिए पानी बहुत जरूरी है, उसकी बच्चे की ग्रोथ के लिए। और दूसरा है ब्लड वॉल्यूम। अगर आप पानी अच्छे से पीते हैं तो आपका ब्लड लेवल ब्लड लेवल भी अच्छे से बना रहता है। अ, किसी के शरीर में खून की कमी होती है तो वो हीमोग्लोबिन वगैरह भी आपके खान पान से आप मेंटेन कर सकते हैं। और पानी भी अच्छे से पीने से आपके ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ता है और सर्कुलेशन अच्छा रहता है। ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में अच्छा बना रहता है और इन्फेक्शंस नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि पानी ज्यादा पीते, ज्यादा यूरिन पास करते तो बॉडी के टॉक्सिन्स काफी निकल जाते हैं। तो ज्यादा पानी पीने का एक फायदा यह है कि आपकी बॉडी टॉक्सिन्स को होल्ड नहीं करती है,
और वो आपका शरीर शुद्धिकरण में काम आता है और इन्फेक्शन होने के चांस बिल्कुल नहीं रहते। जैसे यूटीआई वगैरह इन्फेक्शन हो जाते, वाइट डिस्चार्ज होता है, तो उन सब में आपको इससे फायदा मिलता है पानी पीने से। और छठे सातवें महीने में किसी किसी बहनों को स्वेलिंग आती है, सूजन आती है, तो आप पानी ज्यादा पीते हैं तो वो सूजन और क्रैम्प में भी आपको आराम मिलता है और पानी से आपको थकान नहीं होती है। पानी ज्यादा पीने से थकान नहीं होती है। अभी इसमें हम एक चीज बताएंगे कि अ, गर्भ के ऊपर आवाज का प्रभाव कैसा हुआ, हमने क्या क्या चीजें करी। तो गर्भ को म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। यदि माँ वो संगीत गाती है तो बच्चा बहुत खुश होता है, और माँ जब अपने मनपसंद चीजें खाती है तो भी गर्भ में बच्चा बहुत खुश होता है। हमारे शांति कुंज के कुछ वीडियोस हैं, उनमें डॉक्यूमेंट्रीज हैं जिनमें सोनोग्राफी के समय बच्चा, कला क्लेश के समय बच्चे का रिएक्शंस उसमें दिखाए गए हैं। तो बच्चा बहुत खुश होता है जब माँ की आवाज सुनता है। तो यदि माँ उसके लिए गीत गाती है, अपने आने वाले बच्चे से गर्भ संवाद करती है और बच्चे के लिए कुछ गुनगुनाती है, तो बच्चा बहुत प्रसन्न होता है। इसी के संदर्भ में मैं आपको एक गर्भ प्रार्थना एक एक्टिविटी के रूप में एक सिखाना चाहती हूँ। अगर आप मेरे साथ गाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, और लिखना चाहे तो आप। उत्तम संतान प्राप्ति के लिए ये मंत्र है, तो कृष्ण भगवान का मंत्र है, आप सभी सुनिए। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्णं त्वामहं शरणं गत। ये प्रार्थना है उत्तम संतान प्राप्ति के लिए। आपको लिखना है या गाना है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, और कोई आप मेरे साथ गाना चाहे तो आप गा भी सकते हैं। देवकी सुत गोविंद, कोई अगर गाना चाहते हैं तो अपना माइक ऑन करके गा सकते हैं। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्णं त्वामहं शरणं गत। देहि मे तनयं कृष्णं त्वामहं शरणं गत। ये प्रार्थना है उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए। तो आप अगर सुबह शाम गर्भ की स्तुति करते हैं तब आप ये प्रार्थना गा सकते हैं, और गर्भ संवाद में अपने गर्भ को ऐसे मेडिटेशन में उनको ये इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं बच्चे को कि आपको क्या बनना है, कैसा बनना है। अ, जब माँ मेडिटेशन करके उठती है, जब माँ मेडिटेशन करती है तो उसके बाद उस समय माइंड अल्फा स्टेट में होता है, और उस समय यदि गर्भवती चाहे तो गर्भ संवाद करे तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। गर्भ पे दोनों हाथ रख के 21 बार ओम का उच्चारण करें और गर्भ से खुद को स्वयं को कनेक्ट करें। जब गर्भ से कनेक्ट हो जाते हैं फिर आप ये प्रार्थना, जो गर्भ स्तुतियों के मंत्र है, तेजस्वी भव, ओजस्वी भव, विचारशील भव, नम्र भव, आज्ञाकारी भव, ऐसे सिग्नल्स दे सकती है अपने गर्भ को। और हर बार मेडिटेशन, डेली मेडिटेशन करे गर्भवती तो उसका बच्चा शांत स्वभाव का होता है और इंटेलिजेंट बच्चा होता है। अब इंटेलिजेंट और बुद्धिमान बच्चे, सभी चाहते हैं कि हमारा शिशु बहुत ही इंटेलिजेंट और बुद्धिमान बने। तो उसके लिए एक चीज और काम करती है, खान पान तो ठीक है कि आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लिए और बच्चे के दिमाग को बनाने के लिए जो जो सप्लीमेंट्स है वो तो ले लिए, लेकिन इसके अलावा एक चीज और है जो बहुत की का काम करती है, चावी रूप है, वो है वांचन। गर्भवती माता को वांचन करना चाहिए, और जितनी ज्यादा रीडिंग करेगी उतनी उसकी रीडिंग हैबिट्स, अगर उसको वाचन करने की आदत पड़ गई है तो अपने बच्चे के लिए सबसे सुंदर भेंट, आजीवन भेंट उस ये रहेगी उस माता की उस बच्चे के लिए कि वो बच्चा उत्तम
बच्चे को बहुत उत्तम स्वभाव का बच्चा बनेगा और उसको ये हैबिट ट्रांसफर होगी। जो माता को पढ़ने की आदत है वो बच्चे में ट्रांसफर होगी और ये जीवन भर उसको काम आएगी। ये एक अच्छा अमूल्य गिफ्ट माता की तरफ से अपने बच्चे के लिए है कि जो वो अपने बच्चे को श्रेष्ठ विचारों वाली पुस्तकों से अवगत कराती है। शिशु गर्भ में है और माता श्रेष्ठ विचारों वाली पुस्तकें पढ़ती है तो बच्चे का व्यक्तित्व भी बहुत श्रेष्ठ उच्च व्यक्तित्व वाला बच्चा बनता है। यदि कोई माता चाहती है कि मेरा बच्चा बहुत साहसी और निडर बने या उसे सेना में भेजना है तो वो उसे साहस से भरी हुई शौर्य गाथाएं पढ़नी चाहिए, जैसे शिवाजी महाराज की और महाराणा प्रताप की वार्ताएं है। तो ऐसी वार्ताएं गर्भिणी अपने शिशु को सुनाती है या पढ़ती है तो वो बच्चे में ऐसे मानवता के गुण आते हैं और वो बच्चा संवेदनशील बनता है। और छोटी छोटी कहानियां बच्चे की क्रांतिकारी की कहानियां हैं या गुरुदेव का साहित्य है। अब ये आप हमेशा जान लो कि आप जो भी पढ़ते हो और जो भी विचार करते हो वो 100% बच्चे तक पहुंचता है और बच्चा सुनता है। बिजनेस में चाहिए तो आप चाणक्य को पढ़ो, चाणक्य नीति पढ़ो, विदुर नीतियां है, चाणक्य नीति है। हमारा साहित्य भरा पड़ा, हमारे पास पौराणिक आप महाभारत, आप गीता महाभारत ये पढ़ो। गीता में तो कितना अच्छा मैनेजमेंट है। सुंदरकांड करो, सुंदरकांड मैनेजमेंट सिखाता है। कैसे आपको किस समय हनुमान जी को शरीर छोटा करना था, किस समय हनुमान जी को शरीर बड़ा करना था। तो हमारे पास हमारा तो साहित्य ही इतना अच्छा है, वेदों का साहित्य। हाँ, तो ये सब आप करते हो तो अच्छी चीज है। इसके अलावा भी आपको नेट पे बहुत सारा साहित्य, हमारे शांति कुंज का गुरुदेव का साहित्य बहुत 3200 पुस्तकें हैं, इतने वाङ्मय है, गायत्री महाविज्ञान है। ये सब आप बच्चे तक पहुंच, बच्चे का आईक्यू लेवल बढ़ाना है, उसे एक बहुत उच्च कोटि का विद्वान व्यक्ति बनाना है। तो गुरुदेव का साहित्य, वीर योद्धाओं की किताबें, और बच्चा गर्भ में सब कुछ ग्रहण करता है और सब कुछ सुनता है। और ये साहित्य आप उसे पढ़ाते तो बच्चे का जीवन भी और आपका जीवन भी दिव्य और तेजस्वी बनता है। कुछ बहनें ऐसी होती है जिनको पढ़ाई करने में कंटाला लगता है, ये किताबें कौन पढ़े, कुछ ऑडियो वीडियो विजुअल मिल जाए तो वो देख ले। लेकिन आप यहाँ पर गलत साबित होगे, क्योंकि वाचन से जो फर्क पड़ता है, पढ़ने से, रीडिंग करने से क्या होता है कि आपकी आंख, ब्रेन और आपके विचार सब कुछ एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे कि आपने स्टोरी पढ़ी, आपने एक वीडियो देख लिया कि जंगल है, पहाड़ पेड़ है, तो देखा आपने, आपकी आंखों ने ही देखा है वो सिर्फ। लेकिन जब आप एक वार्ता में पढ़ते हैं कि घना जंगल था और 2 पहाड़ थे, कुछ वृक्ष थे, वहां नदी थी, झरना था, तो जब आप वाचन करते हैं पुस्तक से तो ये फोटो आपके माइंड में बनता है, पहले ये चित्र आपके दिमाग में बनता है, आप उसे विजुअलाइज करते हैं, तो इससे आपकी कल्पना शक्ति बढ़ती है। और जितनी माताएं ये पढ़ेगी एक ही पुस्तक को, उनका अलग अलग विजुअल बनेगा, अलग अलग विजन आएगा। किसी किसी के पहाड़ छोटे होंगे, किसी के वृक्ष बड़े होंगे, किसी का झरना राइट साइड में होगा, किसी का झरना लेफ्ट साइड में होगा। तो जितने ब्रेन होंगे उतनी सृजनशीलता, उतने तरह के पिक्चर डेवलप हो सकते हैं कल्पना शक्ति में। तो इससे क्या होता है, माँ की कल्पना शक्ति बढ़ जाती है। माँ कल्पनाओं में चित्र बनाती है तो कल्पना शक्ति बढ़ेगी, और ये कि ये कल्पनाएं ट्रांसफर होगी आपके बच्चे के ब्रेन में, क्योंकि जो आप सोचते हैं ऑटोमेटिकली वो उसमें ट्रांसफर होता है, और जिससे कि उसकी भी कल्पना शक्ति बढ़ेगी, शिशु भी कल्पना करने में अच्छा बनेगा। वो उसका भी जो ब्रेन है, ये इनका जो कोर्स है शांति कुंज का, उसमें एक चैप्टर आता है शिशु के बुद्धि कितने प्रकार की होती है। 9 प्रकार की बुद्धि डेवलप होती है शिशु में, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। तो इसमें एक टाइप ऑफ ये आता है कि कल्पना शक्ति, शिशु की कल्पना शक्ति कैसी है। जब वो 2 साल 2.5 साल बाद नर्सरी में जाएगा, तब जो जहाँ वहाँ उसे ड्राइंग करनी होगी या चित्र बनाने होंगे,
तब उसकी कल्पना शक्ति जो आपने इस समय पढ़ी है, तब वो उसको वहां पर काम लगेगी, क्योंकि वो उसके सबकॉन्शियस में फीड किया है आपने। जो भी चीज आप बोलते हो, बात करते हो, तो बच्चा एक सीसीटीवी कैमरा की तरह सभी कुछ रिकॉर्ड करता है, अच्छा तो अच्छा और बुरा तो बुरा। तो ये क्रिएटिविटी और सृजनशीलता जब माँ को वाचन से ही मिलती है। जब वो वाचन अच्छी तरह से करेगी, तो ये मन लगा के, तो श्रद्धा भाव से, तो अवश्य 100% वो शिशु के अंदर जाएगी। इसके इतने बेनिफिट है कि दूसरा बेनिफिट आता है याद शक्ति और एकाग्रता। जब गर्भवती वाचन करती, रीडिंग करती है, कुछ भी, कोई भी साहित्य हो या कोई भी संस्कृत के श्लोक हो, तो उससे उनकी याद शक्ति बहुत बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, और ये गुण बालक में भी जाते हैं। हर चीज जो माँ बोलती है, जो सुनती है, जो खाती है, वो सब शिशु के अंदर ट्रांसफर होते हैं। तो माँ की याद शक्ति बढ़ेगी तो शिशु की भी याद शक्ति बढ़ेगी। और कुछ बहनों को तो रीडिंग बहुत अच्छी लगती है, बहुत पढ़ाई करती है, या ऐसे प्रोफेशन में होती है, टीचर होती है, या पढ़ाने का ही काम ज्यादा करती है, ट्यूशंस लेते हैं, तो ज्यादा वाचन करते हैं, तरह तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो जितनी ज्यादा रीडिंग होगी, जितना ज्यादा वाचन होगा, और जितना वैरायटी ऑफ साहित्य वो पढ़ेगी, वो उतनी ज्यादा उसकी विवेकशीलता मुखर होगी, विवेकशीलता बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा और विवेक जागृत होगा। हर सब्जेक्ट की नॉलेज उनको मिलेगी। और हमारे गुरुदेव के वाङ्मय इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। चेतन मन अवचेतन मन, वाङ्मय नंबर 48 ले लीजिए, और वाङ्मय नंबर 63 ले लीजिए, वाङ्मय नंबर 28 ले लीजिए। ये बहुत अच्छे जीवन को उन्नत बनाने के लिए ये इसमें अच्छा अच्छा साहित्य है। चेतना केंद्र पर जाइए और वहां से अच्छे अच्छे टाइटल्स देख करके वाङ्मय खरीद लीजिए। और वाङ्मयों की छोटी छोटी पुस्तकें भी बनी हुई है, छोटी पॉकेट बुक्स जैसी, 2, 5, 10 रुपए की बहुत सारे सेट मिल जाएंगे आपको। जैसे जीवन के 7 स्वर्णिम सूत्र है, जीवन को उन्नत बनाने के लिए कुछ ट्रिक्स दी हुई है, घरेलू जीवन कैसा हो, घर का वातावरण कैसा हो, ये सब चीजें, ये सब ज्ञान है। हाँ, इंग्लिश की बुक्स आप पढ़ सकते हैं, और गुरुदेव का सभी साहित्य इंग्लिश में भी उपलब्ध है। और नेट पर भी www.org.com पे आप जाइए, वेब पेज खोलिए, गायत्री ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार, तो वहां पर आपको नेट पर गुरुदेव की काफी पुस्तकें, खास करके गुरुदेव की जो पुस्तकें हैं, हमारी वसीयत और विरासत, और दूसरी पुस्तक है सुनसान के सहचर, और डॉक्टर साहब की युग गीता, ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है, और भी कई भाषाओं में, 5, 6 भाषाओं में अवेलेबल है। इसमें गीता का बहुत सुंदर विवेचन किया गया है, 4 पार्ट्स में है डॉक्टर साहब की युग गीता। ये इंग्लिश में है, बहुत सुंदर पुस्तक है, और गीता के श्लोकों का बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन किया गया है। पुस्तक का नाम रिपीट करती हूँ कि ये एक तो आप विभूतियों की आत्मकथाएं ले सकते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की वगैरह। विचार क्रांति बुक्स एप्लीकेशन છે, હા છે, મળશે તમને, મળશે। પછી लिंक्स તમને એમાં ग्रुपમાં મોકલી આપીશ। तो एक पुस्तक का नाम है सुनसान के सहचर। ये गुरुदेव की जीवनी के ऊपर है कि गुरुदेव ने जब कैसे हिमालय यात्रा करी, और वहां पर उनको क्या क्या मिले, कैसे दादा गुरुदेव से उनका साक्षात्कार हुआ। अ, बहुत सुंदर पुस्तक है, एक बार आप हाथ में पकड़ोगे तो फिर आप छोड़ोगे नहीं, इतनी अच्छी पुस्तक है ये। तो और ये हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, पंजाबी में भी अवेलेबल है। और दूसरी पुस्तक है हमारी वसीयत और विरासत, गुरुदेव गुरुदेव ने लिखे हैं, गुरुदेव के विचार है। और फिर है माता जी की अमृतवाणियां, ये भी वाङ्मय के फॉर्म में भी है, और छोटी छोटी पॉकेट बुक्स में भी अवेलेबल है। तो आप ऑनलाइन इस पे रहने के बजाय, स्क्रीन सर्फिंग के बजाय, आप स्क्रीन से दूर रहिए, जितना हो सके इस समय स्क्रीन से दूर रहिए। केवल जरूरत के समय ही आप स्क्रीन को यूज करें, कोई भी हो, लैपटॉप, मोबाइल, या कोई भी प्रकार का टीवी का स्क्रीन भी हो।
आप पुस्तकें पढ़ें और लेखन करें, मंत्र लेखन करें, क्योंकि लिखना भी एक बहुत ब्रेन की अच्छी एक्सरसाइज है। और लिखने से भी बहुत सारे फायदे हैं कि आपके बच्चे की हैंडराइटिंग भी अच्छी होगी। अगर आप सुंदर हैंडराइटिंग, सुंदर अक्षर निकालते हैं, तो बच्चे की हैंडराइटिंग पे भी आप बिल्कुल ड्रीम बेबी बना सकते हैं। आप कैसे बना सकते हैं कि एक एक, जैसे कि आप बच्चे मिट्टी के घर बनाते हैं, बाय करी सको बुक्स बधी भाषाમાં મળશે। हाँ, ये अ, आपको सभी भाषाओं में चेतना केंद्र पर अवेलेबल है, और ऑनलाइन भी आपको बुक्स मिलेगी। तो बच्चे का दिमाग बनना शुरू होता है तीसरे महीने से, और 5 वर्ष तक बच्चे का ब्रेन का विकास होता रहता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब बच्चा गर्भ में होता है 9 महीने, तो उसके इंफॉर्मेशन प्रोसेस की जो स्पीड है, वो 20 बिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड वो प्रोसेस करता है। गर्भ में बच्चा इतना अच्छा ग्रहण करता है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड से करता है। और बाहर आकर के तो वो कॉन्शियस माइंड से बिहेव करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में उसका 100% सबकॉन्शियस माइंड गर्भ काल में जागृत होता है। और वो जो चीजें उस पर इम्प्रिंट हो जाती है, जो चीज उसके अंदर स्टोर हो जाती है, वो आगे पूरा जीवन वह उसका उपयोग करता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे वो अभिमन्यु वाला सबको पता है कि वो गर्भ काल में उत्तरा ने चक्रव्यूह वेदन सुना और वो सो गई। उसके बाद वो नहीं सुन पाई, लेकिन अभिमन्यु ने वैसा का वैसा चक्रव्यूह वेदन किया। तो गर्भ काल में सुनी हुई चीजें, अष्टावक्र का एग्जाम्पल है। गर्भ काल में ही माता पिता द्वारा सुना हुआ ज्ञान उनके काम आया। फिर उन्होंने पिता से शास्त्रार्थ किया, तो पिता ने उनको कहा कि वो तुम 8 जगह से वक्र हो जाओ। तो वो अष्टावक्र इतने महान विद्वान थे। ऐसे बहुत सारी, रानी मदालसा का भी एग्जाम्पल है कि मदालसा भी अपने सभी पुत्रों को ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि ब्रह्म और ब्रह्म से मिलाने के लिए बात करती थी। तब फिर उनके पति ने कहा कि एक पुत्र मुझे राजकाज के लिए चाहिए। तो उन्होंने उसको वैसे पॉलिटिक्स पढ़ाई और वैसी चीजें पढ़ी, वैसा साहित्य और वैसा गर्भ संवाद और वैसे ही मेडिटेशन। तो वो बहुत अच्छा पॉलिटिशियन बना, अच्छा राजकाज करने वाला बना। ये इतनी 20 बिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड प्रोसेस करता है गर्भ शिशु का ब्रेन। और जो कि बाहर आकर के, बड़े होकर के वो खाली 40 बिट्स पर सेकेंड रह जाती है। और इसमें हम गर्भिणी को कहते हैं कि आप वाचन के सिवाय कुछ मेडिटेशन और ध्यान साधनाएं भी करें। ध्यान साधना, ध्यान करना, तत्वबोध, इसमें कई प्रकार के, 4-5 प्रकार के मेडिटेशन आते हैं, जो समय समय पर अगर आप डिमांड करोगे तो आपको उनका वीडियो अभी तो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, ऑडियो वीडियो सब कुछ। तो आप वहां से भी ले सकते हैं। 5 शरीरों का ध्यान, तत्वबोध की साधना, नाद योग, 3 शरीरों का ध्यान, ये ध्यान बहुत अच्छे हैं। और प्राणाकर्षण प्राणायाम, ये सब आप कर सकते हैं। और इस एक ध्यान में एक चीज और कर सकते हैं। जिन बहनों ने शांति कुंज दर्शन किया है, तो वो शांति कुंज का दर्शन भी ध्यान में कर सकते हैं। उसके भी फोटोज आप दिव्या माँ को बोलिए, तो वो आपको शांति कुंज दर्शन के वीडियोस इसमें ग्रुप में डालेंगे। तो उसमें पूरा शांति कुंज दर्शन है, वो भी एक अच्छा मेडिटेशन है। सुंदर फूल खिले हुए रहने से लेकर अखंड दीप का दर्शन, गायत्री माता का विग्रह का दर्शन, गुरुदेव माता जी का दर्शन, उनके रूम का दर्शन, वो भी एक बहुत अच्छा ध्यान होता है। और इसमें एक एक ध्यान और आता है, रात्र में चंद्र दर्शन। चंद्रमा क्या, चंद्रमा प्रतीक है सौंदर्य का, और ठंडक देता है। कहते हैं हम शरद पूनम पे खीर रख के खाते हैं ना, उसमें अच्छी ठंडी अच्छी वाइब्रेशंस होती है, मेडिसिनल रेज वो देता है। तो रात्रि को हम चंद्र ध्यान भी कर सकते हैं। आप खुली जगह में बैठ करके अपने बालकनी या गाशी में या आंगन में बैठ के आप चंद्रमा का ध्यान कीजिए, और जिससे आपका माइंड बिल्कुल तनाव मुक्त होगा, बीपी रेगुलेट होगा। अगर बीपी बढ़ा रहता है और किसी प्रकार की भी परेशानी है, तो चंद्र ध्यान से वो
आप उसको काम डाउन कर सकते हैं, जिससे आपका आने वाला गर्भस्थ शिशु भी बहुत विनम्र और शांत स्वभाव का आएगा। चंद्रमा का ध्यान, हमें हमारे कई व्रत उपवास त्योहार भी ऐसे बने हुए हैं कि जिसमें हम चौथ का चंद्रमा देख करके फिर भोजन करते हैं। उत्तर भारत में फेमस है कि चंद्रमा देख करके बहनें व्रत तोड़ती है, निर्जला व्रत रखती है पति की लंबी आयु के लिए। तो चंद्रमा हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी बॉडी का 70% वाटर जो है वो चंद्रमा ही रेगुलेट करता है। चंद्रमा इतना स्ट्रॉन्ग कारक है, कुंडली में भी जिसका चंद्रमा अच्छा होता है वो मन से अच्छा होता है। एस्ट्रोलॉजी में भी चंद्रमा का, सूर्य और चंद्रमा का बहुत महत्व है कि अमावस और पूर्णिमा के दिन इसीलिए हमारे यहाँ व्रत रखाया जाता है कि आप अमास व्रत करो, पूनम व्रत करो, 11 व्रत करो। इससे हमारी बॉडी का जो फ्लूइड, बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं वो कंट्रोल में रहते हैं और डाइजेशन अच्छा रहता है। ये पूरा आयुर्विज्ञान और आयुर्वेद हमारी पूरे ब्रह्मांड को समेट लेता है। इससे जुड़ी हुई हर चीज को आपकी बॉडी, जो भी प्रभाव यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, जो भी प्रभाव ब्रह्मांड में होता है वो हमारे पिंड में होता है। तो चंद्र दर्शन बहुत अच्छी चीज है, उससे मन को बहुत सुकून मिलता है। आप ये चंद्रमा दर्शन कर सकते हैं और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत फायदा करता है। और इसमें एक वाक्य कहा जाता है हमारे उपनिषदों में, बुद्धिर बुद्धिर यस्यम बलम तस्यम, जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। तो कैसे बुद्धि 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 एक प्रकार का बल ही है जो कि मानसिक शक्तियों से डेवलप होता है। मानसिक शक्तियां कैसे होती है, जब हम एक साथ सत्संग करते हैं, सत्संग में जाते हैं, एक साथ मंत्र उच्चारण करते हैं, वेदों का पाठ करते हैं, तो ये सब पॉजिटिव वाइब्रेशंस को ब्रह्मांड तक ले जाता है। जब हम समूह समूह में यज्ञ करते हैं, 108 कुंडी यज्ञ कर रहे हैं, 51 कुंडी यज्ञ कर रहे हैं, या घर में यज्ञ कर रहे हैं, या कुछ नहीं तो घर में 5 मेंबर है तो 5 मेंबर संध्या के समय 5 मेंबर भी एक साथ बैठ के प्रार्थना करते हैं तो उसका भी बहुत प्रभाव होता है। अक्सर देखा गया है जो सत्संगी होते हैं, धार्मिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो उन लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और आयु भी लंबी होती है। और बुद्धि बल की बात करें तो आपने वार्ता सुनी होगी खरगोश और शेर की वार्ता, कि कैसे खरगोश ने बुद्धि के बल से शेर को कुएं में गिरा दिया। वो प्री स्कूल में एक वार्ता आती है कि वो शेर था, जंगल में सब जानवरों को खा जाता था। तो एक दिन खरगोश की बारी आई तो खरगोश ने युक्ति लगाई। और क्या युक्ति लगाई कि उसको बोला कि तुमसे भी बड़ा एक शेर इस कुएं में है। शेर ने कुएं में गर्जना करी और उसे लगा कि वास्तव में, और क्योंकि खरगोश तो बुद्धिमान है, शेर के पास उतनी बुद्धि नहीं है, और वो कुएं में गिर पड़ा और खरगोश की अपनी जान बच गई। तो ये जिसके पास बुद्धि बल है वो ही बलवान है। और बुद्धि हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सर्वविदित है, धीमहि धियो यो न प्रचोदयात। हम बार बार ये कहते हैं कि ये बुद्धि का मंत्र है, बुद्धि को तेज करने का मंत्र है। आप जितना गायत्री मंत्र बोलेंगे, आपकी बुद्धि 24 अक्षर का ये मंत्र है जो कि शरीर के 24 मर्म स्थान पर जाकर के टकोर करता है। और वहां पे जमे हुए जो 24 मर्म स्थान है वहां पर जमे हुए टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। गायत्री मंत्र करने से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होता है। इसीलिए आप अवश्य गायत्री मंत्र का जाप करें तो आपका बुद्धि बल भी बहुत बढ़ जाएगा। और इससे एक चीज और होती है, इसका जिक्र करना भी बहुत जरूरी है, इससे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जब भी आप माला पूजा करके भगवान की सेवा करके उठते हैं या लाला की सेवा करते हैं अपने घर में, तो आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये हैप्पी हार्मोन्स होते हैं एंडोर्फिन। एंडोर्फिन रिलीज होते हैं। तो ये एंडोर्फिन का एक फायदा और होता है कि जब बच्चे का मस्तिष्क बन रहा होता है तो उसमें ग्रे मैटर ग्रे मैटर ज्यादा बनता है और बच्चे का ब्रेन एक्टिव बनता है और चैतन्य बच्चा होता है। शिशु में लर्निंग की पावर ज्यादा आ जाती है
ग्रे मैटर ज्यादा बनता है, एंडोर्फिन ज्यादा बनता है, तो बच्चे की लर्निंग बहुत अच्छी होती है और बच्चा चैतन्य स्वरूप होता है। ऐसे बहुत से वीडियोस यूट्यूब पे देखने को मिलते हैं कि जिन गर्भवती माताओं ने गर्भ संस्कार कराया है और तीसरे और पांचवें महीने में, तो और गायत्री मंत्र का निरंतर लेखन और जाप किया है, तो उनके शिशु अ, ओम की आवाज से या मंत्र की आवाज से शांत हो जाते हैं। रोते हुए, चिड़चिड़े, और यदि कोई बुखार है, बीमारी है, तो भी शिशु को यह बहुत आध्यात्मिक सपोर्ट देता है और बच्चा शांत हो जाता है। और मेडिटेशन करने से भी, जब आप फिजिकली मेडिटेशन कर रहे हो गर्भावस्था में, तो आपके ब्रेन में अल्फा तरंगे बढ़ जाती हैं। अल्फा तरंगे आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है, मानसिक स्वास्थ्य और विवेक जागरण के लिए। ये अल्फा मेडिटेशन से ही बनेगी। आप केओस कर रहे हैं या संगीत सुन रहे हैं, तो आप अल्फा स्टेट में नहीं पहुंचेंगे। अल्फा तरंगों को सुनने के लिए, अल्फा तरंगों में जाने के लिए आपको श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक सामने आप एक दीप प्रागट्य करके आप जप कीजिए या भगवान के विग्रह में खुद को आत्मसात कीजिए, तो आप मेडिटेशन की उस स्टेट में पहुंचेंगे जिसमें अल्फा तरंगे डेवलप होती हैं। और अगर उस समय ध्यान के समय आप शिशु से गर्भ संवाद करते हैं, तो इसका लाभ आप अपने शिशु तक अवश्य पहुंचाते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि आप मेडिटेशन में हैं और तुरंत उठ के इधर उधर मत जाइए। आप अपने नाभि पर दोनों हाथ रखिए, नाभि के सामने, और 21 बार ओम का जाप कीजिए, ओम का उच्चारण करें। हमारे गुरुदेव ने भी बताया ये कि आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो 21 बार ओम का उच्चारण करो। और फिर अपने जो गर्भ संवाद है, फिर वो आप गर्भ संवाद बच्चे के साथ करो। तेजस्वी भव, ओजस्वी भव, दीर्घायु भव, शांत भव, आज्ञाकारी भव, ऐसे सारे अफर्मेशंस आप बच्चे को दे सकते हैं और देना भी चाहिए अवश्य। ये रोज का क्रम हो, सोने से पहले भी आपको देना चाहिए। और सुबह की आपकी जो नहा धो करके आप पहली बार पूजा करते हैं, या सुबह उठ के पथारी में आप दिन भर का शेड्यूल बनाते कि आज मुझे क्या करना है, तब भी आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि ड्रीम चार्ट बनाइए आप अपने बच्चे के लिए। बेबी विजुअलाइजेशन, कि आप कैसा बेबी चाहते हैं, कैसा बेबी विजुअलाइज करते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो ये आज की एक एक्टिविटी है कि ये आप अपना एक ड्रीम चार्ट बनाइए। और ये ड्रीम चार्ट क्यों बनाना है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीज मैं आपको एक स्टोरी से बताती हूँ। एक वार्ता है, बाइबल में एक आती है एक वार्ता कि बाइबल के एक दो किरदार है। ये इसका लिंक आपको, आप इस पे डालेंगे ना तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे चार्ट मिल जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। चार्ट में तो सिंपल, जैसे आप बच्चों के स्कूल के प्रोजेक्ट के चार्ट देख लीजिए। एक सर्कल, बड़ा सर्कल ड्रॉ करिए। जैसा आपके घर में जगह है जहां आप अपने बेड के सामने लगा सकते हैं, आप अपने किचन में लगा सकते हैं चार्ट, उसको आप नजर के सामने रखे, दिन में 3 4 5 बार देखे, या जहां आप पूजा करते बैठते हैं उसके पास में स्थान हो, आपके मंदिर के पास में एक बड़ा राउंड सर्कल। या आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप चार्ट कैसा बनाते हैं। एक बड़ा सर्कल बनाइए, बीच में केंद्र में बच्चे का फोटो लगाइए, और उसके 5 6 खाने, जो जो गुण आप बच्चे में देना चाहते हैं, वो मार्किंग करके उन खानों में वो बच्चे के गुण लिखिए कि तू क्षमाशील भव, तो तेजस्वी भव। तो ऐसे गुण लिख, अनगिनत हजारों प्रॉपर्टीज हैं अच्छे बनने के लिए, अच्छे व्यक्तित्व की। जितनी आप ऐड कर सकते हैं आप उसमें ऐड कीजिए। या आप एक फैमिली ट्री बना लीजिए चार्ट पर। ये फैमिली ट्री बच्चों के प्रोजेक्ट में बनवाते हैं स्कूल में, तो आप ऐसा फैमिली ट्री बना सकते हैं। या आप एक रेक्टेंगल चार्ट पे भी लाइंस ड्रॉ करके लिख सकते हैं। तो ये चार्ट बनाना तो बहुत आसान है, आपने अपने स्कूल टाइम में बनाया होगा, तो सभी बहनें बना सकेंगी ये चार्ट। लेकिन उसमें आपको हाईलाइट करना है अपने अपने बच्चे का कैसा, उसमें आप भगवान का बाल रूप लगा दीजिए, भगवान कृष्ण का या भगवान राम का या किसी भी एक सुंदर चेहरा बच्चे का उसमें बीच में स्टिक करिए।
जिस चेहरे को आप बार बार देखते हैं, कि इसमें विजुअलाइज करने से क्या होता है, जैसे माँ विजुअलाइज करे कि मेरे बच्चे के गाल में डिंपल पड़ना चाहिए, और मेरे फैमिली में दोनों साइड, पेरेंट्स और माँ के साइड, किसी को भी डिंपल नहीं पड़ता है। अगर माँ बार बार विजुअलाइज करती है कि मेरे बच्चे के गाल में डिंपल है, तो वो सच में बच्चा जब जन्म लेगा तो आपको उसके गाल में डिंपल दिखेगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे और सुने हैं। और इसके अलावा एक बाइबल की वार्ता आती है कि ये कैसे काम करता है, विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है। तो बाइबल की एक घटना है कि लेबन और जैकोब नाम के दो व्यक्ति थे। तो लेबन के पास बहुत सारी भेड़ और बकरियां थी। तो लेबन ने एक लड़के को अपने सहयोग के लिए रखा, जिसका नाम जैकोब था। जैकोब को उसने बोला कि तू मेरी भेड़ों की देखभाल कर, और इन भेड़ों में जो भी भेड़ें काले दाग वाले और पट्टे वाली है, उनका जो भी दूध और ऊन, जो भी उनसे बेनिफिट्स मिलते हैं वो तेरे, और बाकी भेड़ों का मैं लूंगा। क्योंकि उस समय ये बार्टर सिस्टम ही चलता होगा, या जो भी है, उन्होंने इस तरह की डील करी। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा डील कर लिया। अब जैकब बहुत स्मार्ट लड़का था। उसने क्या करा कि वो भेड़ें तो कम थी जिनके ऊपर दाग और पट्टे का निशान था। तो उसने उन भेड़ों को अलग किया, और उन भेड़ों को अलग किया, और उनके सराउंडिंग्स में उसने कुछ पेड़ थे ऐसे, जो पेड़ काटे, उन पेड़ों के ऊपर वो डिजाइन बनाई, जैसी उन भेड़ों के ऊपर डिजाइन थी। छाल को उतार के कुछ काले पट्टे, कुछ निशान, अंदर से छाल वाइट दिख रही थी, तो ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट दे रहा था पेड़ों का। ये एक वार्ता है कि विजुअलाइजेशन कैसे इफेक्ट होता है। तो उसने कुछ भेड़ों को, जो गर्भवती भेड़ें थी, उनको उनके चारों तरफ ऐसे तने, पेड़ के थड़ काट के डिजाइन बना के लगा दी, जहाँ भेड़ें रहती थी। और वो को उसने काले छाल निकाल करके ऐसे डिजाइन बना के, जहाँ भेड़ें पानी पीती थी, सारे दिन विहार करते थे और वो समागम करते थे, तो उनके आसपास उसने वैसे ही डिजाइन वाले किए। और कुछ दिनों के बाद उसी बाड़े में सब घेटे बकरे सब उसी बाड़े में रहते थे। तो थोड़े दिन बाद उनका असर उनको दिखने लगा, क्योंकि यहाँ पे काम करता है लॉ ऑफ एडेप्टेशन। जैसे कि गिरगिट होता है ना, रंग बदलता है, वातावरण हरा है, पीछे हरा है, तो सुकेवाय ने गुजराती में काचिंडो, गिरगिट बोलते हैं, हिंदी में उसे गिरगिट बोलते हैं। तो बैकग्राउंड जैसा अपना कलर चेंज कर देता है बॉडी का, ताकि कोई उसे पकड़ ना सके। सेम वैसा ही भेड़ों के साथ हुआ। उन्होंने उस कलर को रात दिन देखते थे, उसको एडेप्ट कर लिया, और उनके जो बच्चे आए वो सब वैसे ही दाग वाले और पट्टे वाले बच्चे थे। तो वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भेड़े उसी वातावरण में थी, उसी वातावरण में पानी पीते थे, और उसी वातावरण में समागम करते थे, उसी वातावरण में विहार करते थे, जिसके चारों तरफ वैसे काले थड़ लग का बाड़ा बना हुआ था। ऐसे काले डिजाइन वाला बाड़ा बना रखा था उसने। तो उसको अ, उसको शक हो गया लेबन को कि ये क्या बात है, ऐसा कैसे संभव है कि ये भेड़ें तो कम हो गई और ये काली डिजाइन वाली भेड़ें ज्यादा हो गई। उसने कहा हो सकता है ये कुदरती तौर पे ऐसा हो रहा है। लेकिन उसने एक चीज नोटिस करी कि ये जैकब पूरा दिन बैठ के लकड़ियां काटता है, उनकी छाल उतारता है, और फिर वो भेड़ों को बाड़े में लगाता है। तो थोड़े दिन उसने नोटिस किया, तो उसको उनकी युक्ति समझ में आ गई कि ये बहुत होशियार इंसान है। इसने अपना भाग, अपना फायदा ज्यादा लेने के लिए ऐसी भेड़ों को डेवलप कर लिया। एक दो वर्ष में ऐसी भेड़ें ज्यादा हो गई। तो उसने उसको निकाला नहीं और झगड़ा भी नहीं किया। उसने इतने बुद्धिमान इंसान से अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी, और उसकी इतना बुद्धिमान है तो अपनी बेटियों का ब्याह मैं इसी से कर दूं। अभी इसका आप पूछो कि कैसे ये असर करता है, ये चीज कैसे असर करती है गर्भ से गर्भवती के ऊपर, और गर्भ में संस्कार कैसे आता है। तो ये विज्ञान है। ये ये विज्ञान है। कैसा विज्ञान है ये? फोटो फोटो ड्रीम फोटो का विज्ञान। गर्भ संस्कार पर पड़ता है, ड्रीम फोटो का असर गर्भ संस्कार पे बहुत ज्यादा पड़ता है। तो क्योंकि हमारी आंख जो है 86,000 जीनोम्स
यानी कि इतने केमिकल संदेश हर समय ब्रेन को भेजती है। जो भी नया दृश्य हमारी आंख देखती है तो वो जीनोम फॉर्म में, और वो उतने केमिकल्स बना करके हमारे ब्रेन को संदेश, कैसे हमारे ब्रेन को संदेश जाता है, केमिकल और इम्पल्स फॉर्म में जाता है। तो ये गर्भावस्था में जब कोई स्त्री कोई भी विचार नहीं करती, इग्नोर्ड होती है, जैसे कि हम मजदूर वर्ग को देखते हैं, मामा लोग को देखते हैं, तो उनकी स्त्रियां पूरा दिन, बहनें बेचारी गर्भवती है और उनको रोजी रोटी कमानी है, तो ये सब चीजों पे ध्यान नहीं देती है और वो पूरा दिन काम में बिजी रहती है। फिर जब काम से छूटती है तो रसोई और बच्चे के काम में लग जाती है, तो वो इग्नोर्ड रहती है। तो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जैसे उनका रंग, कद, काठी, उसमें परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। वो वैसे ही आपको पूरी ट्राइब, आदिवासियों की पूरी ट्राइब आपको एक जैसे ही, उनका चमड़ी का कलर और वो सारी चीजें एक जैसे दिखेगी। मतलब बायोलॉजिकल चेंजेस उनके अंदर कम होते हैं। लेकिन जो गर्भावस्था में कोई स्त्री अवेयर होकर के इन चीजों पे ध्यान देती है, तो और अपने ड्रीम फोटो और अपने ड्रीम विचारों को इम्पोज करती है, विजुअलाइज करती है, तो वो 50% तक जो डीएनए और आरएनए में जो इंफॉर्मेशन फीड है, माँ बाप की तरफ से जो आ रही है वो तो आएगी, लेकिन हम उस इंफॉर्मेशन को रेक्टिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इस तरह के विजुअलाइजेशन और खान पान और यज्ञ, गर्भ संवाद, ये सारी ट्रिक्स जो गर्भ संस्कार में दी जाती है, इन सब चीजों से, इनसे क्रिएट होता है एपिजीनोम। एपिजीनोमेटिक्स अभी ये बताया है। हाँ, अभी तो रेडी नहीं है कोई भी चार्ट, लेकिन लिंक डाला जा सकता है, आप ढूंढे तो मिल जाएगा। तो ये एपिजीनोम जो है, ये 50% तक आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर सकते, जैसे कुछ नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं तो उनको आप, ये एपिजीनोम्स वो उसमें जीन का खाली एक्सप्रेशन चेंज कर देते हैं। जैसे एक इसमें एपिजीनोम का एग्जांपल आता है कि काली आंखों वाली माता अगर इच्छा करे कि मेरे बच्चे की आंखें ब्लू आईज मिले, तो वो अगर रोज ब्लू आईज वाली लड़की को देखे और रोज विजुअलाइज करे कि मेरे बच्चे की आंखें ब्लू आए, तो वो ब्लू आईज वाला बच्चा पैदा हो जाता है। ऐसा ये एपिजीनोम की वजह से ऐसा होता है। वैसे जो उसके डीएनए आरएनए में ब्लैक आईज की ही इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये एपिजीनोम काम करता है और ये एक्सप्रेशन चेंज होकर के ब्लू आईज वाली संतान आप प्राप्त कर सकते हैं। और अपने विचार, खाली विचारों से आप अब बच्चे की आंखें, बाल, चेहरा और काफी हद तक बच्चे को आप अपना ड्रीम बेबी बना सकते हैं। और इसके लिए आपको क्वालिटी चार्ट तो बनाना पड़ेगा और सतत चिंतन करना पड़ेगा कि जैसा आप देखना चाहते हैं बच्चे को, तो वैसा चार्ट आप बनाइए और वैसा ही वांचन करिए। ये बहुत बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप आज ही बैठ करके बनाइए। हाँ, 7th 8th 9th मंथ में ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, 7th 8th 9th मंथ में। तब बच्चे का ब्रेन अच्छा खासा डेवलप हो चुका होता है। 7वें महीने से जो भी आप वार्ता कहेंगे ना, तो वो जो भी आप बोलेंगे, आपके शब्द वो सबकॉन्शियस माइंड में झीलता है, वो सब सुनता है बच्चा। और जैसा आप चाहेंगे ऐसा गुणों से युक्त बच्चा आप बना पाएंगे। अपना ड्रीम चार्ट और सद साहित्य के वाचन से आप गर्भावस्था के दौरान जैसा विजुअलाइज करेंगे वैसा ही बच्चा आप बना पाएंगे। इसका एक एग्जांपल और मुझे याद आ रहा है। हमारे एक पहचान के व्यक्ति हैं, उनके यहाँ बड़ी बेटी गर्भवती थी, तो उनको किसी ने भगवान राम का बाल रूप का कैलेंडर दिया। उसके नीचे एक चौपाई लिखी हुई थी। पहले आते थे भगवानों के कैलेंडर ज्यादा बनते थे, तो वो रोज अपने बेड के सामने सुबह उठते, शाम को दर्शन, सोते समय उस कैलेंडर के ही दर्शन करती थी। उसको बेटी पैदा हो गई। उसके 1 साल बाद उसकी छोटी बहन को
वो जो कि दूसरे शहर में थी। वो दोनों मिले तो उसने वो कैलेंडर, भगवान राम की बहुत सुंदर प्यारी बाल रूप की छवि थी, वो कैलेंडर उसने उसको दे दिया कि तू गर्भावस्था में इसको देखना। देख, मैं इसको देखती थी, भगवान राम के जैसे गुण मेरे बच्चे में आए। तो उसकी बहन ने भी वैसा ही किया। ठीक है, कैलेंडर है, अपने बेड के सामने लगा लिया। तो आ, वो भी उसको देखती थी। और आप नहीं मानोगे, वो दोनों बेटियां अभी मेरे सामने हैं, और उसकी बहन की भी बेटी का फीचर्स जो भगवान राम के उस कैलेंडर में थे, दोनों बहनों की बेटियों रिजेंबल है। जो कि बड़ी बहन के दो बच्चे और हैं, लेकिन वो बेटी उन अपने सिबलिंग्स के साथ उतना मैच नहीं करती जितना वो अपनी बहन की बेटी के साथ रिजेंबल करते हैं फीचर्स, जबकि वो दूसरे शहर में थी। तो विजुअलाइज करने का इतना इफेक्ट होता है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है जो हमारे सामने भी है। तो अब तो समय भी हो गया है हमारा, और कुछ आपको अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी भगवान के सुंदर सुंदर कैलेंडर मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप अपने हर रूम में लगाइए, जहां भी आपका नजर जाता है वहां आप ये लगा करके रख सकते हैं, एक चार्ट और एक भगवान के सुंदर विग्रह का फोटो। और तीसरी चीज, संस्कृत के श्लोक, संस्कृत की स्तुतियां, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, अथर्वशीष, ये दो चीजें मैं ज्यादा प्रिस्क्राइब करती हूँ। कि अथर्वशीष जो है गणपति के मंत्र है, और गणपति भगवान की स्तुति है, जिससे कि आपके बच्चा बुद्धिमान होगा। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र स्त्री के अंदर बल और शौर्य का साहस देता है। ये माँ दुर्गा की, काली माता की स्तुतियां हैं। और इनसे इन मंत्रों से आपको इनर स्ट्रेंथ, मॉरल स्ट्रेंथ मिलती है, आपकी रक्षा होती है, आपकी और आपके गर्भ की रक्षा होती है, ताकि प्रसव काल में आप साहस पूर्वक नॉर्मल डिलीवरी कर सके। अभी किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी हमारा टाइम हो गया है। स्तुति के नाम बताइए, ऐसा प्रश्न किया है। सिद्ध कुंजिका कौन स्त्रोत, कौन से स्तुति स्तोत्र? सिद्ध कुंजिका स्त्रोत, ग- और गणपति का है अथर्वशीर्ष, गणपति अथर्वशीर्ष। ये संस्कृत में है इसलिए मैं बोल रही हूँ। संस्कृत सुनना और बोलने से आपका मगज का विकास बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा हमारा गायत्री चालीसा है, राम रक्षा स्तोत्र है, और हनुमान चालीसा है। ये सारी चीजें स्तवन। आप जितने भी स्तवन है, गायत्री स्तवन है, ये भी संस्कृत में है। यन मंडलम, इसके भी बहुत सुंदर मीनिंग है। आप अगर इसका मीनिंग इंटरप्रिटेशन पढ़े, गायत्री महाविज्ञान में है। और सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम है, गायत्री सहस्त्र नाम है, लक्ष्मी सहस्त्र नाम है। ये सभी आप भरा पड़ा है हमारा तो सत साहित्य इतना, हमारे पौराणिक साहित्य, उपनिषद, वेद, ये सब बहुत सारे हैं। सिद्ध कुंजिका, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। तो गर्भावस्था ये चीजें ज्यादा इफेक्टिव होती है 7वें 8वें महीने 9वें महीने में, जब बच्चा पूरा सजग होके सुनता है, उसके सुनने के इंटरनल ईयर एक्सटर्नल ईयर डेवलप हो चुके होते हैं। और जब विकास होना शुरू होता है तो वो होता है 20वें महीने से। जब कान बनना और मगज बनना शुरू होता है तो 20वें हफ्ते से शुरू होता है, प्रेगनेंसी के 20th वीक से शुरू होता है। तब से आप ये 9 महीने, वैसे भी आप डेली लाइफ में आप प्रेग्नेंट नहीं भी है तो भी आप ये सारी चीजें करेंगे तो आपकी रक्षा होती है, और आपका बुद्धि विवेक जागृत रहता है। बीजू कहीं बाकी रही हो दिव्या बहन? हाँ, बहुत बढ़िया आपने सारा विवरण किया है। मतलब लोग નહીં સમજ પાएंगे કે એ સબ આ બધું બતાવે છે એની પાછળ શબ્દો અને શબ્દોથી શું અસર થાય છે એ બધું એમણે સમજાવી દીધું આપણને. કેવી રીતના વિચાર શક્તિ, કેવી રીતના કલ્પના શક્તિ, કેવી આપણું ગણિત, કે આપણા 9 જે આપણા આઈક્યુઝ છે કેવી રીતના ડેવલપ થશે.
તો આ બધા પાછળનો મર્મ હતો શબ્દો. એટલે એમણે તમને કીધું વાંચન કરો, અને વાંચન કરવાથી જ્યારે તમે આંગળી મૂકીને વાંચન કરો છો તો જે આંગળી દ્વારા એક સ્પર્શ દ્વારા શબ્દ, શબ્દ દ્વારા એના સબકોન્શિયસ માઇન્ડની અંદર આ બધું સ્ટોર થઈ જાય છે. એટલે વાંચન અને શબ્દો અને સંગીતની અસર કેટલી બધી થાય છે. જ્યારે સંસ્કૃત તમને બોલવામાં કહેવામાં આવે છે ત્યારે સંસ્કૃત શબ્દ બ્રહ્મ સાથે જોડાયેલું હોય એટલે તમારું તરત જ બ્રહ્માંડની ચેતનાઓ સાથે તમારું સમાગમ થઈ જાય છે, અને એ તમારી આસપાસ એક રક્ષા કવચ બનાવીને બાળકને विशेष बुद्धिमान बनावे છે. तो આપણને आज का अपना टॉपिक यही था ना, ध्वनिया हाँ, हमारे इसीलिए मैंने यही बोला गर्भ कि पे। आपने हाँ, ध्वनि के ये सारी चीजें ध्वनि द्वारा આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. તો ધ્વનિ શબ્દ દ્વારા ધ્વનિ, અને ધ્વનિ શબ્દો દ્વારા. તો જે સ્તવન બોલવામાં આવે, જે પણ કરવામાં આવે છે ત્યારે આપણી તરંગો દ્વારા આભામંડળ, અને આભામંડળ દ્વારા બ્રહ્માંડીય ચેતનાઓ, અને બ્રહ્માંડીય ચેતના ગાયત્રી સ્થાપના દ્વારા ચિન્મય જ્યોતિનો મહાપ્રાણ સૂર્યના ગર્ભમાં જે રહેલો છે એની સાથે આપણે જોડાઈ જઈએ છીએ. એટલે શબ્દોની અસર જે એમણે આપણને ખૂબ જુદી જુદી રીતે સમજાવી, વાર્તાઓ દ્વારા, સ્ટોરી દ્વારા, અને કેટલું ફાઇન આપણને દરેક શાસ્ત્રોનું લોજિકલ અને આધ્યાત્મ અને વિજ્ઞાનના સમન્વય સાથે આપણને શીખવાડ્યું. તો એ બદલ બેનનો ખૂબ ખૂબ આભાર. એટલું બધું જ્ઞાન હોય છે ત્યારે એને કન્ક્લુડ કરીને તમારી સામે પ્રસ્તુત કરવું ઘણીવાર બહુ ડિફિકલ્ટ બની જતું હોય છે, કારણ કે પછી એટલા બધા લોજિક્સ આવતા જાય કે શું બોલવું ને શું કટ ઓફ કરવું. તો એ તમારી અત્યારની સ્થિતિ હતી, અને ખૂબ સરસ આપે બધી સાચી જ વાત. શબ્દોને મેં તો આપકો જાણતી હું ના, તો એટલું બધું નોલેજ હોય છે તો આપણને એમ થાય કે કયું સિલેક્ટ કરીને અત્યારે આપીએ. અને ત્યારે જ્યારે આપણે ખૂબ વાંચેલું છે ને, તો હું અત્યારે તમને આ વસ્તુ એટલા માટે સમજાવી રહી છું કે એમણે ખૂબ વાંચન કર્યું છે. તો વાંચન કરવાના કારણે બ્રહ્માંડની ચેતનાઓ એક પછી નોલેજ આપતા જ જાય છે. આપણે ઓટોમેટિકલી આઈટી એટલે આપણું જે આકાશ તત્વ છે એની સાથે જે ભ્રમણ કરવા વાળી ચેતનાઓ છે, નાદ યોગ હે ને, સ્વર લહેરીઓ, અને આ સ્વર લહેરીઓ દ્વારા આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું રહેશે. અને એ તમે એની સાથે જોડાયેલા હશો એટલે તમને ખબર પડે, પણ સામેવાળાને ન સમજણ પડે. તો આ સ્વર લહેરીઓને જાગૃત કરવા માટે આપણે બેને જેમ જેમ કીધું એ બધું કરીશું. અને ગણપતિ ભગવાનનું જ્યારે સ્તોત્ર કરીએ છીએ ત્યારે આપણું ગણિત, મેથ્સ જેનું કાચું હોય એને હંમેશા ગણપતિ પૂજા અર્ચના આરાધના કરવી. ગણપતિ સંકટ મોચન છે, ગણપતિના અથર્વશીર્ષ તો ખૂબ જ સરસ છે. તો આ બધા જ સ્તોત્ર આપણે જ્યારે કરાવીએ છીએ ત્યારે બાળકમાં બધી જ આઈક્યુઝ 9 આઈક્યુઝ ડેવલપ થાય છે. અને આપણે ગોલચાર્ટ કરાવીએ છીએ, એક્ટિવિટીમાં પણ કરાવીશું ફરી, અને આપણે ઓફલાઈન સેશનમાં પણ આ બધી જ વસ્તુઓ બહેનોને શીખવાડીશું. તો જેને કોઈને ઇન્ટરેસ્ટ હોય એ લોકો આપણી સાથે ઓફલાઈન જોડાઈ શકે છે. તો હું ખૂબ ખૂબ આભાર બહેનો, જેટલો કરીએ એટલો ઓછો છે. सत्तू बनाने की रीत सिखा दीजिए सबको. अच्छा, देखिए सत्तू एक सुपर फूड है और हर एक व्यक्ति को 6 महीने के बच्चे से लेके 80 साल तक के वृद्ध को भी दिया जा सकता है. सत्तू क्या होता है? मेनली चना होता है, चना और जौ और चने को हम भाड़ में भुंजवा लेते हैं, या आप घर में भी नमक डाल के कढ़ाई में सेक सकते हैं, या ओवन में सेक सकते हैं. देसी काले चने और जौ, प्रपोर्शन बता. हाँ, प्रपोर्शन 50-50% आप ले लीजिए जौ और चने को. या अगर आपको प्रोटीन, जैसे डॉक्टर ने बोला है प्रोटीन डेफिशिएंसी है, तो आप चने का बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जौ तो कार्बोहाइड्रेट है विद मिनरल्स. तो आप प्रपोर्शन अपने हिसाब से, मतलब 50-50% नॉर्मल रहता है. दोनों को सेक लीजिए और मिक्सर में उसको पीस करके उसको थोड़ा फटक दीजिए, क्योंकि उसके ऊपर छिलका होता है, वो छिलका निकल जाएगा. हाथ से ऐसा करके फिर उसको बारीक ग्राइंड कर लीजिए. फिर उसको खाने का तरीका भी ऐसा ही है, आप पानी में मिला के दही के साथ और नींबू डाल के या शुगर गुड़ डाल के सत्तू खाया जा सकता है. ये इवन पराठा और पूड़ी में भी, कचौरी में भी भरा जा सकता है सत्तू. सत्तू में थोड़ा प्याज, हरी मिर्च, हरा मसाला सब डालें और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के उसके छोटे छोटे कचौरी के फिलिंग बनाते हैं. फिर उसकी आप आटे के साथ उस भरवा पराठा भी बना सकते हैं.
और सत्तू सिंपल है और कोई चीज नहीं है, 2 अनाज है, 2 अनाज का मिक्सचर है, चना और जौ, जो कि हाईली न्यूट्रिटिव है और पचने में इजी है जब उनको भूंज देते हैं तब। हाँ ओके, यू कैन ऐड उसमें थोड़ी मूंगफली भी भून के डाल सकते हैं, अगर पाउडर आपको करके। उसकी वैल्यू बढ़ानी तो मूंगफली, हाँ तो मखाने, आप मखाने मखाने सब भी डाल ऐड कर के सकते हैं। हाँ પાવડર બના કે બોટલ में રાખી આપ મૂકી દો અને જ્યારે हाँ જરૂર પડે, ભૂખ લાગી છે ત્યારે પાણીમાં ગોળ ઘોળી દો અથવા મિશ્રી हाँ ઘોળી દો અને એને મિક્સ કરીને તમે પી લો. બંને કામ ફોર્મમાં પરથી આવ્યા છો, બહુ જ ભૂખ લાગી છે. ખારું અને મીઠું 2 પ્રકાર લઈ હા શકાય. હા, કે તમને નમકીન જોઈએ છે તો તમે એ હા પ્રમાણે એડ કરીને તમે છાશમાં નાખીને પી લો. તો હમણાં ગરમીમાં બહુ જ સારું છે. B12 પણ ખૂબ મળશે, D3, B12, ઓમેગો, આ બધા ફેટ્સ તમને મળશે અને ખૂબ સરસ પોષક તત્વ છે જે તમે કામ કરતા હોય તો પણ તમે ઓફિસમાં લઈ જાઓ, પાણીમાં ઘોળો અને તમારી એનર્જી લેવલને અને બૂસ્ટ અપ. बहुत हाँ સ્મોલ क्विक एनर्जी रिलीज करते हैं ये आपके હા ब्लड में. તો इसके साथ ખૂબ खजूर का સરસ. सेवन भी कर सकते हैं. अगर हाँ पर आपको खजूर क्विक को थोड़ा एनर्जी, भिगो देते हैं, भिगो के यूज गर्भवती करेंगे को, तो हाँ बहुत अच्छा रहेगा. गर्भवती को थकान लगती है तो वो सुबह शाम 2 खजूर पानी में भिगो के भी खा सकते हैं, वो भी क्विक एनर्जी रिलीज करता है. खजूर बहुत अच्छा है आयरन हाँ के लिए, तो आयरन डेफिशिएंसी सत्तू वालों के के लड्डू लिए. भी बना के आप रख सकते हो, सत्तू की सुखड़ी बना के, सत्तू के लड्डू बना के, वॉट एवर ફોર્મ આપ જો ચાહતે હો. પર બધી ગર્ભવતી માતાએ આ સત્તુ બનાવીને પોતાના ઘરમાં રાખવું જ જોઈએ. બરાબર છે? તો हाँ सुपर કોઈને કોઈ फूड है, પ્રશ્ન सुपर હોય, फूड. હા સુપર ફૂડ છે, કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો બેનને પૂછશો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આજે પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવનો પણ આપણને ખૂબ સારો સંદેશ હતો. આ ઇન્દ્રિય સંયમ, સમય સંયમ. આપણે ગર્ભવતી છે ત્યારે આ બધી વસ્તુનો જો સંયમ રાખીશું તો આપણા 9 મહિનાની મહેનત, 90 વર્ષની શાંતિ અને એક શ્રેષ્ઠ સંતાનને આપણે જન્મ આપી શકીશું. તો એ બદલ અર્ચનાબેન, તમારો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને સમસ્ત ટીમનો ધન્યવાદ, તૃપ્તિબેનનો ખાસ ધન્યવાદ અને આપણી ગર્ભવતી માતાઓ જે જોડાઈ છે એમનો પણ ધન્યવાદ. તમારી ડાયરીમાં જે કંઈ પણ તમને સમજાયું છે એ બધું લખી લેજો અને તમારા હોમવર્કમાં ચોક્કસ ડાયરીમાં લખજો. તો તમારું બાળક પણ ભણવામાં હોમવર્ક ફટાફટ કરી લેશે અને જિજ્ઞાસુ બનતો જશે કે મારે કંઈક નવું શીખવું છે. तो अर्चनाबेन आप भी शांति पाठ करा दीजिए. जी और जरूर. सबको बहुत बहुत धन्यवाद. जी जय जी, गुरु. सत्तू सत्तू के लिए पूछ रहे कब से ले सकते हैं, तो 6 महीने के बच्चे को भी सत्तू गुड़ में पानी में घोल के दिया जा सकता है और ऐसी वर्ष तक के वडील को भी दिया जा सकता है. एक सुपर फूड है और इजीली डाइजेस्टेबल है. खाली 1 चमची, आधी चमची भी आप ले सकते हैं, वो भी आपको काम करेगा. શાકભાજીના ફિલિંગમાં પણ તમે એઝ પાણીમાં કરીને हाँ થિકનિંગ તરીકે बारिश પણ में भी ले બનાવી सकते हैं શકશો. क्योंकि ये तो તમે એને अनाज है. હા અને ક્યાંય પણ યુઝ કરી શકે. મલ્ટિપલ યુઝેસ છે આના. તો બધાએ સત્તુ બનાવી લેવું જોઈએ અને શાંતિ પાઠ કરીએ. અત્ર તત્ર સર્વત્ર શાંતિની સ્થાપના થાવ. બેનના મુખથી આપણે શાંતિ પાઠ કરીશું અને આજનું આપણું સેશન અહીંયા પૂરું થશે. અહીંયા વડોદરામાં આપણે ઓફલાઈન સેશન મહિનામાં 2 વાર કરીએ છીએ. જેને કોઈને પણ ઇન્ટરેસ્ટ હોય એ કોન્ટેક્ટ કરશો તો આપણે તમને એ બધી વસ્તુઓને ખૂબ સરસ રીતે શીખવાડીશું. જય ગુરુદેવ. जय गुरुदेव. શાંતિ. शांति पाठ. सभी कमर सीधी करके बैठे, लंबा गहरा श्वास ले. ओम देव शांति, अंतरिक्ष ध्वम शांति, पृथ्वी शांति, शांतिरापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, सर्वध्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि. ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव. ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु. જય जय ગુરુદેવ. गुरुदेव. ધન્યવાદ. કાલે આવતા અઠવાડિયે ફરી મળીશું. જય ગુરુદેવ બધાને.